So good morning. In this lecture today, we are going to cover the second topic of NLP, syntactic processing. And these are the topics that I will be discussing today. I will be covering that what are this syntax and syntactic processing, what is the meaning of these two terms, and how the parts of speech helps us to do the syntactic processing. Plus, there will be two techniques that will be discussed in detail, that how the rule based or hidden Markov model based POS tagging is done. And also we will be looking at one of the code in the end. uh, I have already shared that on my GitHub. I will show that to you in the end. We will discuss that code. So let's begin. So initially, we have already covered lexical processing in the previous two lectures, and we have discussed all these topics. We know how tokenization is done, what is timing, lemmatization, TF, IDF, phonetic. So everything we have already covered in the previous lectures, and now we are going to talk about the syntax and syntactic processing. So let's look at these three sentences. Has 23 Thapar ranking of NIRF. NIRF has ranking of 23 Thapar, and TIIT has NIRF ranking of 23. So obviously we know by just looking at it that the third sentence is making some sense, and other two are not making that much of sense. इतना तो हमें पढ़ के समझ में आ रहा है, but how do this thing, I mean, how is this handled by the computer, our machine learning model, right? So we need to discuss these things. And all of these sentences have the same set of words, and based on lexical processing सबका मतलब TF-IDF वो सब अगर हम करेंगे, वर्ड स्टॉप, वर्ड रिमूवल, स्टेमिंग, लैमिटेशन, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. All of these three sentences will have the same exact output based on the lexical processing. So the basic lexical processing techniques will not help us identify the difference between these three sentences, and कुछ ज़्यादा better चाहिए. In fact, this syntactic processing technique is required to understand that what is the actual meaning of this sentence and which one is making the best sense out of it. So let's look at the syntax and syntactic processing definitions also. So arrangement of words in a sentence, हमें पता है that it is very important, and this arrangement, these arrangements are governed by the set of rules we refer to as syntax, and the process by which machine understands the syntax is called the syntactic processing. And this is a definition. Syntax is a set of rules that govern the arrangement of words and phrases to form a meaningful and well-formed sentence. And the subset of NLP which deals with the syntax of the language is called the syntactic processing. So generally जो हमारे sentences बन रहे हैं, we know that syntax क्या होता है and we know everything, but in the world of NLP इसको syntactic processing के through हम handle करते हैं. And this syntactic processing forms the backbone of various NLP applications where it is crucial. अब इसमें can anyone give me example that where this syntactic processing will be used? अगर आप कोई ऐप बना रहे हो, उस ऐप में syntactic processing जरूरी है, ऐसा कोई ऐप आ रहा है आपके मन में? Can anyone tell? अगर कोई एप्लीकेशन आ रहा हो माइंड में कि हमें सिंटेक्स के बेसिस पे, सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग के बेसिस पे अगर कोई एनएलपी एप्लीकेशन बनानी है, कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दैट ऐप इफ यू वांट टू वर्क अराउंड सम एप्लीकेशन? अगर सपोज को माइनर प्रोजेक्ट ही बना रहा हो, एनी आइडिया? एनीवन? लगाओ दिमाग. You can speak up also. In chat, you people are writing language translation. Okay. सो लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज वन एप्लीकेशन, यस. बट अगर मैं कोई ऐप की बात करूं, अगर हम जो रियल वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं, दीज थ्री आर द वेरी फेमस वंस. द फर्स्ट वन इज द अलेक्सा, सिरी, गूगल, ओके गूगल जैसे हम बोलते हैं. सो दोज एप्स जो भी हैं, so whatever we are speaking, it is making the sense out of it depending on the words that we are selecting, the way we are forming our sentence. Let's say I'm saying okay Google, let's play this song, जो भी सॉन्ग का नाम है, तो उस सेंटेंस को वो ब्रेक कर रहा है, उसको समझ रहा है, एंड देन इट इज एबल टू डू दैट जॉब. और मे बी आई से अलेक्सा play this song, or maybe Alexa set an alarm of 5 a.m. in the morning. So all those things will be understood
थ्रू द सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग ओनली, अगर आप कुछ ऐसा ऐप बनाना चाहते हो। सिमिलरली अगर आप कोई चैटबॉट यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग विद सम बैंक, और अगर कोई ऐप का, स्विगी ऐप है, जोमेटो है, उनका कोई आप चैटबॉट से हेल्प ले रहे हो, यू आर पुटिंग एन ऑर्डर, और इवन फॉर एचडीएफसी बैंक मैं यूज कर रहा हूँ आजकल, तो एचडीएफसी बैंक का एक वो व्हाट्सएप मैसेज आना शुरू हो जाता है दैट वट एवर आई वॉन्ट आई कैन गेट इट ऑन व्हाट्सएप, I can just give my command and we can get the job done from the chatbot, that WhatsApp based chatbot of HDFC. Similarly, Grammarly is very famous tool. We all use it. Free version तो सबके पास ही है. We have encountered that how this helps us in improving the sentence formation and even the grammar, punctuations, all of those things. So it is all part of syntactic processing, and all of these are applications of NLP, syntactic processing area. सो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब ये पीओएस क्या होता है इसकी बात करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेंटेंस है, इन पटियाला इट इज बेटर टू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट एंड वी यूज कारपूलिंग टू ट्रांसपोर्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड बैक. नाउ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दो बार यूज हो रहा है दोनों सेंटेंस में, एक एक बार. सो व्हाट डू यू थिंक दैट द वर्ड ट्रांसपोर्ट इज, आई मीन ये कर क्या रहा है यहाँ पे, है ना. अब यहाँ पे बात आती है नाउन, वर्ब, ऐसी चीजों की, कि ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है. सो व्हेन वी से दैट वी यूज कारपूलिंग टू ट्रांसपोर्ट आवरसेल्व्स, यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो ये वर्ब है. बट इट इज बेटर टू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ये नाउन है, राइट. सो ये नाउन और वर्ब का जो बैकएंड पे उसको समझना है, उसको ब्रेक करना है कि ये नाउन है या वर्ब है, उसको वो समझ के उस हिसाब से बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल we will look at an application today based on Google Translation, कि वो कैसे सेम सेंटेंस को अगर मैं लिख रहा हूँ अलग अलग, अब जैसे सपोज मैं इन्हीं दो सेंटेंसेस को गूगल ट्रांसलेट पे डालूंगा, तो वो उसका टोन हल्का सा अलग होगा एंड वो अपने आप समझ जाएगा कि यार ये नाउन है, ये वर्ब है. एनीवन वांट्स टू स्पीक? रवजोत, एनी डाउट? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो यहाँ पे वो अपने आप समझ जाएगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अलग हो जाता है. सो फॉर एग्जांपल, to understand this, you need to understand what the parts of speech are. यहाँ पे जैसे मैंने पीछे बताया, for example, अब यहाँ पे ये न्यू सेंटेंस है, you are learning NLP at Thapar. So from your knowledge of English language, हमें पता है NLP and Thapar are nouns, learning is the verb and you is a pronoun here in this sentence. And these are the parts of speech tag. तो यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है, POS की, noun की, verb and pronoun, right? And all of these are parts of speech tags. If we talk in terms of NLP, and a word can be tagged as noun, verb, adjective, pronoun, preposition, adverb. तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रोल, उसको सेंटेंस में क्या रोल मिला, एंड ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट पीओएस टैग्स. So assigning the correct tag such as any of these is one of the most fundamental task in the syntactic analysis. तो हमें अब तक ये समझ में आ गया है कि syntactic analysis if we want to implement, we are actually decoding that what kind of word it is in a sentence depending on the usage. वो noun है, verb है, preposition है, adverb है. There are many. एक अभी आगे दिखाऊंगा मैं. There are 36 standard uh, POS tags based on some library. It is a very famous library. I will show you that web page also. Now suppose you ask your smart home device that, okay Google, where can I get the permit to work in Canada? So the word permit can be potentially have the two kinds of POS tags. It can be a noun, it can be a verb. अगर मैं ये वाला सेंटेंस उठाता हूँ, I need a work permit, the correct tag of permit is noun. इस केस में permit noun है. But please permit me to take the exam, यहाँ पे permission की बात हो रही है, तो it is a verb. तो सेम वर्ड का डिफरेंट सेंस बन रहा है. एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ये सेंटेंस है, पीपल इलेक्टेड जो बाइडेन टू लीड यूएसए, राइट. नाउ ये लीड हमारे अलेक्सा को या गूगल को कैसे पता कि इट इज ए मेटल और लीडरशिप, राइट. तो वो अपने आप बैकएंड पे कुछ चीजें कर रहा है जहां से उसको पता चल रहा है कि ये चीज इट्स अबाउट लीडरशिप एंड इट्स नॉट अबाउट लेड द मेटल. स्पेलिंग चाहे सेम है.
वो डिस्कस करेंगे हम आगे जाके कि वो क्या कर रहा है बैकएंड पे. सो नोइंग इट is noun or verb will be the POS tag. तो यहाँ पे our target is to let's say tag each word in the sentence to its noun or verb form. यहाँ पे simplicity के लिए सिर्फ noun और verb का example लिया जा रहा है. Now parts of speech are the groups or classes of words which have similar grammatical properties and play similar roles in a sentence. अब यहाँ पे POS tags are defined based on the how they relate with the neighboring words. तो it's not that हम यहाँ पे इसको isolation में lead को पढ़ना चाह रहे हैं. आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो इवन आई कैन नॉट टेल दैट इट इज ए मेटल और ए लीडरशिप, इट इज ए नाउन और ए वर्ब. बट अगर मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, अगर मैं नेबरिंग वर्ड्स के बारे में मेरे को पता होगा, आई कैन प्रिडिक्ट दैट इट इज अबाउट लीडरशिप एंड इट्स नॉट अबाउट द मेटल. So adjectives are being used just before nouns to tell the property of it. For example, a beautiful building. Now here, beautiful is the adjective of that building. Building is the noun here. तो ये मेरे को देख के पता चल रहा है, right? So because we have studied English language from so many years, we know these kind of basic properties. मुझे पता है कि adjectives noun से पहले आते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं adjective के बाद साथ ही उसके noun आता है. तो ये चीज हमें अपने मॉडल को सिखानी है, right? And for that we need to understand that how the neighboring words are affecting the prediction of POS. So in this POS tags, assigning the correct POS tag will help you get the better meaning, right? जो भी बात करना चाह रहे हैं. And there are two types of POS tags जो हम classify करते हैं. But one is open class and other is closed class. Let's look at open class POS tag. Open class का मतलब है that it refers to the tags that are evolving over time and where new words are being added. For example, इसमें जैसे noun, verb, adjective ये सब है. But इसका एग्जाम्पल है, जैसे सपोज कोई नेम ऑफ द पर्सन है, तो उसके साथ उसका सपोज एज, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं बंदे की, राइट? ही कैन बी अ गुड पर्सन, ही कैन बी अ बैड पर्सन. सो दैट थिंग, दैट name of the person may have different kind of adjective over time, and words that can be added or taken from another language, such as words taken from Sanskrit such as yoga or karma, words that are nouns but can be used as verbs also. अब ये सब ओपन क्लास है, मतलब इसका प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है. अब गूगल इज ए कंपनी ऑल्सो, एंड गूगल कर लो कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैसे गूगल इट, इट मीन्स सर्च कर लो, है ना? तो इट कैन बी ए वर्ब ऑल्सो. सो words that are formed by combination of two words such as football, full moon, washing machine, even it can be Thapar Institute. तो जो कॉम्बिनेशन वाले हैं वो भी, अब ये सारी चीजें ओपन क्लास में आ रही हैं. एंड क्लोज वाले में क्या होता है? preposition, pronoun, conjunction, articles, determiners and numerals. फॉर एग्जाम्पल a and the, you and I. तो ये सब जो है इसका फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, राइट? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ open and closed class POS tags. And यहाँ पे we will also be working with the Spacey toolkit today. Spacey toolkit is one of the library which is helpful for us to get the job done for syntactic processing. Versus we have used NLTK to remove the stop words to do the tokenization in the previous classes. That was lexical processing. Lexical wala was being done by NLTK. For this syntactic processing, we will be taking help of this Spacey toolkit. Now let's talk about this POS tagging in detail. So POS tagging is the task of automatically assigning POS tags to the words. यहाँ पे हम ये algorithm छोटा सा लिखा हुआ है that we have a set of POS tags. मतलब वो tags कुछ भी हो सकते हैं. It can be noun, verb, adverb, 36 तरह के हैं. एंड देन आउटपुट में क्या आएगा? हम हर वर्ड को एक एक टैग दे देंगे. एंड दैट इज बीइंग आल्सो शोन हियर that this is the sentence CSCD is teaching NLP, and if we pass this sentence to the model, we expect that we will be given a tag for each word as the output. CSCD को जैसे हमने noun कर दिया, NLP को भी noun दे दिया, is teaching as verb here. So if we have these two options, we are actually giving a tag to each word. That's the output here. So this is the basic POS tagging working. And let's take a look on another example. For example, मेरा input is she sells seashells on the seashore. So she is a noun here, sells is a verb, seashells is a noun, uh, on is a subordinate conjunction बोलते हैं इसको, as conjunction. This is my determinant. The seashore is a noun again. So you can refer to these two links here, where universal POS tag,
is the list of finding text corresponding to their parts of speech, and you can also refer to this पेन ट्री बैंक प्रोजेक्ट। तो मैं अभी आपको इन दोनों का भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सो यूनिवर्सल पीओएस टैग्स हैं, जो जो भी पीछे लिंक देखा था हमने, वहां पे ये बात हो रही है कि ओपन क्लास क्लोज क्लास कौन कौन से हैं, ठीक है। सो these tags mark the core part of speech categories, and alphabetical listing देखे तो इनका मतलब ये है, जैसे मैं कह रहा था वो subordinate conjunction है तो s conjunction, तो काफी तरह के हैं, राइट। एंड सिमिलरली अगर आप पेन ट्री बैंक देखोगे तो यहाँ पे हमें नियरली 36 टाइप के डिफरेंट कंजंक्शन नहीं बट पीओएस टैग्स दिख रहे हैं, दैट सी 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 डी, तो मतलब जो भी है हमें इसके हिसाब से समझना है, एंड we might get some outputs when we are implementing this Pentry bank project based part of speech tags अगर हम उसको tag कर रहे हैं, right? And at the end of the lecture we will also be working around this heteronyms POS tags prediction, तो ये वाला कोड हम एंड में डिस्कस करेंगे। now coming back to the slides, so this is about the basics, the introduction to POS tagging. Now let's look at the rule based POS tagger. Now दो तरह के मैं POS tag बताऊंगा, one is rule based, the other one is the hidden Markov model। तो रूल बेस की बात कर लेते हैं, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे कोई सेंट आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड दैट लेट्स से देयर आर 6 वर्ड्स इनटू इट, मतलब ये बहुत छोटा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 6 ही वर्ड है, तो उस पूरे डॉक्यूमेंट में वो वर्ड वन कितनी बार नाउन आया, कितनी बार एडजेक्टिव आया, कितनी बार एडवर्ब आया, कितनी बार आर्टिकल प्रोनाउन, तो हम पूरा स्कैन करेंगे शुरू से लेके एंड तक, एंड वी विल फिल द फ्रीक्वेंसीज कि भाई मेरा वर्ड वन है, 2 बार नाउन यूज हुआ है, इसका 6 बार एडजेक्टिव यूज हुआ है, एंड दिस वर्ड वन इज ऑल्सो 3 टाइम्स एडवर्ब, एंड सिमिलरली वर्ड टू का वर्ड थ्री का, तो हम ये पूरा भर लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब वही वही सब लिखा हुआ है कि हमें इसमें फ्रीक्वेंसी लिख देंगे कि मेरा वर्ड 5 है वो 16 बार एडवर्ब है, 4 बार एडजेक्टिव है, 23 बार वर्ब है, तो हर वर्ड का हमने लिख दिया यहाँ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वर्ड वन है, इट इज अकरिंग, Ravjot, do you have any doubt? So you people are unmuting yourself and still not asking anything. Okay. In this table, जो हमने पीछे भी देखा है, the word one is occurring noun 2 times, and as an adjective it is occurring 6 times, and so on in the training data set जो हमने basic table frequency का fill करा है. The identification of POS tags in the training data set is done manually to predict the POS tag, and in this table हमें पता है कि चलो word one 2 बार है, ऐसे ऐसे करके सब हो गया। For example मेरा ये sentence है, if I am given a sentence where word 4 word 1 word 3, for example Sahil teaches data और मे बी डीएस, ठीक है, साहिल टीचर्स डीएस, ऐसे करके 3 वर्ड हैं, तो वैसे करके ये 3 वर्ड हैं, वर्ड 4 पहले पे आ गया, वर्ड 1 फिर आ गया, वर्ड 3 आ गया। नाउ वी वांट टू प्रिडिक्ट के भाई इसका टैग क्या होगा। सो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेबल जो हमने पीछे देखा है, तो वर्ड 4 का मैक्सिमम टाइम नाउन आ रहा है, यहाँ पे देखो 15 मैक्सिमम नंबर है फॉर वर्ड 4, तो वर्ड 4 का प्रिडिक्शन नाउन आएगा। उसके बाद अगर मैं वर्ड 1 का देखूंगा तो वर्ड 1 का मैक्सिमम एडजेक्टिव आ रहा है 6 नंबर, एंड वर्ड 3 है थर्ड वाला, 3 का है मैक्सिमम प्रोनाउन, ये है ही प्रोनाउन, तो आउटपुट विल बी noun, adjective and pronoun, and that's what is the output here, noun, adjective and pronoun. So यहाँ पे can anyone tell me that what can be the drawback of this technique? अगर हम ऐसे करके टेबल बना रहे हैं, नेव बेस मॉडल के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि वर्ड 4 आया है तो ये नाउन ही होगा, वर्ड 1 आया है तो ये एडजेक्टिव ही होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू इन द रो ढूंढ के। कैन एनीवन टेल मी व्हाट कैन बी द ड्रॉबैक ऑफ दिस? एनीवन बताओ यार, कुछ तो पार्टिसिपेशन करो। चलो मैं ही बता देता हूँ। नाउ सपोज, चलो वही सारा कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बट द शॉर्ट कमिंग इज दैट कंसीडर्स इंडिविजुअल वर्ड इन आइसोलेशन। यही बात हम पीछे कर रहे थे कि अगर मैं सिंगल वर्ड को आइसोलेशन में उठा के उसको प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कर दूंगा, या फिर जैसे वो था दैट जो बाइडेन was selected to lead अमेरिका,
राइट, ऐसा कुछ सेंटेंस था, तो वो लीड वाली है या लेड है, मेटल है या मतलब इट इज ए नाउन और ए वर्ब, वी कैन नॉट से अनलेस वी हैव रेड द फुल सेंटेंस। तो यहाँ पे भी ये चीज गलत है कि हम हर वर्ड को बेस्ड ऑन इट्स प्रोबेबिलिटी डाल रहे हैं कि यार ये वाला है तो फिर ये एडजेक्टिव ही होगा, ये वाला आया तो ये नाउन ही होगा। तो ये टेक्निक भी गलत है। ठीक है, इट इट वर्क्स वेल फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, बट अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी कुछ डाटा हुआ, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड दो बार यूज हो रहा है, जहाँ पे एक बार वो नाउन है एक बार वो वर्ब है, जैसे वही सेंटेंस में हम अभी बात करके हटे हैं लीड वाला एग्जांपल या लेड, तो वो वाली चीज में वो दोनों के केस में उसको नाउन ही कर देगा, अगर मतलब वो दो बार कहीं सेंटेंस में आया, एंड डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट वहाँ पे वो रेपिटेशन हो जाएगा। So that can be a drawback. So context won't be clear in the rule based. No, you're right, Ravjot, that context will not be clear in this rule based approach. तो इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, राइट। एंड कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अभी तुमने कॉन्टेक्स्ट बोला ही तो। सो लेट्स से वी हैव दीज टू सेंटेंसेस, दैट tortoise won the race, due to the injury the horse will not be able to race today। अब इस केस में एक नाउन है एक वर्ब है, ठीक है, ऊपर वाला नाउन है नीचे वाला वर्ब है, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सो यूजिंग द सिंपल फ्रीक्वेंसी पीओएस टैगिंग यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश इट्स पीओएस टैग। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यार मतलब बेस्ड ऑन अभी जो हमने पीछे रूल बेस वाला देखा है, वो तो रेस को दोनों में नाउन है तो नाउन ही बोल देगा, अगर उसमें वर्ब जीता तो दोनों को वर्ब बोल देगा। तो ऐसे केस में वो चीज फंस जाएगी जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को वो समझ नहीं पा रहा। सो रूल बेस्ड अप्रोच विल नॉट वर्क इन दिस काइंड ऑफ ए केस, जहाँ पे हमें दो अलग अलग टाइप का आउटपुट चाहिए पीओएस टैग में। सो यहाँ पे हिडन मार्कोव मॉडल विल हेल्प अस, and we have seen POS tagging based on the frequency of tags alone, which seems inefficient when it comes to the words with different contexts. Hidden Markov model HMM will help us perform better at its as it is usable for the context of the previous word to decide the POS tag of the current word। वो पीछे मतलब जस्ट इमीडिएट वाला जो उसके पीछे वर्ड है उसके बेसिस पे उसका आउटपुट वो बता पाएगा, वो लिंक करके चलता है कि यार मेरा पिछला नाउन था तो अब आगे वाला क्या होना चाहिए, इट कैन बी वर्ब, और मे बी अगर पीछे एडजेक्टिव था तो अगला इट विल बी ए नाउन। तो वो बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड वो उठाता है कि यार क्या होना चाहिए मेरा अब आगे वाला, प्रीवियस टैग प्रिडिक्ट करता है। तो लेट्स assume, let's consider this example. So what does your mind process when you see this blank space? Rahul is driving to dash. Don't you think that the blank space should be the name of a place? मतलब ये obviously thing है ना, मतलब बचपन से हम ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो आई एम ड्राइविंग टू, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं तो वी ऑब्वियसली नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्लेस, वी आर गोइंग समवेयर, so that name is kind of intuitive for us. So try to analyze your thoughts after reading the statement, and when you see the word Rahul who is driving to some place, or and hence you will reach to conclusion that the blank space should be the name of a place, it should be a noun, and this means that you have sequentially looked for the entire sentence। मतलब यहाँ पे इस स्लाइड पे वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हम कैसे काम करें, हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है। तो हिडन मार्कोव मॉडल का भी थोड़ा सा ऐसा करके इंट्यूशन है, तो इनफैक्ट मार्कोव नाम का जो है यहाँ पे हिडन का मतलब कुछ है, मार्कोव का कुछ है, तो वो हम देखेंगे अभी। बट एच एम एम विल वर्क अराउंड लाइक दिस, जो हम अभी बात कर रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे करेगा। सो सीक्वेंस लेबलिंग नाम का एक चीज होता है, इट इज अ टास्क ऑफ लेबलिंग द इंडिविजुअल यूनिट्स इन ए सीक्वेंस। पीओएस टैगिंग इज दस नेचुरल यूज केस ऑफ द सीक्वेंस लेबलिंग। यहाँ पे वही बात हो रही है दैट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द सेंटेंस, एंड सेंटेंस के बेसिस पे हम वो लेबलिंग करते जा रहे हैं। ये आ गया हिडन और मार्कोव दोनों का यहाँ पे मीनिंग डिस्कस करा हुआ है। सो व्हेन वी से हिडन मार्कोव मॉडल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिडन? हिडन का मतलब है व्हेन यू ऑब्जर्व, कुछ भी आप सुन रहे हो पढ़ रहे हो, अगर कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उसका पीओएस टैग वहां पे नहीं लिखा होता, पर हमें इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि यार ये नाउन है ये वर्ब है ना। तो वो जो पीओएस टैग जो हिडन है, आपको उसका मतलब जानना है, तो इसलिए इसको हिडन बोल रहे हैं। मार्कोव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्कोव नाम का एक एग्जाम्पशन है। सो द पीओएस टैग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द पीओएस टैग ऑफ द करंट वर्ड। ठीक है, जो अगला वर्ड है वो हमारे करंट वर्ड के पीओएस टैग पे डिपेंडेंट है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट वर्ड डिपेंड्स ऑन द पीओएस टैग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अब अगला वर्ड भी प्रिडिक्ट तभी करेंगे अगर हमें उसका पीओएस टैग पता होगा कि यार अगला अब एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आएगा,
तो वी विल प्रेडिक्ट ए नाउन ओनली इन दैट केस। तो ये सेकंड सेंटेंस का मतलब ये है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हिडन एंड मार्कोव। अगर इसमें किसी को डाउट है यू कैन आस्क, बट हिडन एंड मार्कोव का ये मतलब है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल ऑफ द टोरटॉइस वन द रेस। अब इस केस में एचएमएम काम कैसे करेगा वो मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। इस केस में क्या होगा, इनिशियली जब हमने मॉडल को इनपुट दिया एचएमएम को, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट में मेरे पास द आया है, स्टार्टिंग वर्ड इज द, एंड बेस्ड ऑन दिस व्हाट विल बी माय आउटपुट ऑफ द पीओएस टैग। तो वो मॉडल के पास जाएगा एंड मॉडल विल डू सम प्रिडिक्शन। ठीक है, तो मॉडल विल बी गिविंग सम आउटपुट, और इस केस में जो द है इट इज एन आर्टिकल। ठीक है, तो वो आर्टिकल आउटपुट दे देगा एंड दैट विल बी द आउटपुट। अब अगला, मतलब वो वर्ड बाय वर्ड देख रहा है ना, पिछला वर्ड भी उसने देखना है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया था। नाउ द इनपुट विल बी द का उसको पता है कि वो आर्टिकल है जो हमने ऊपर से प्रिडिक्ट करवाया है। एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्टोइस। सो दिस विल बी द इनपुट टू द मॉडल, इतना हिस्सा, एंड दिस विल बी चेक बाय द मॉडल के भाई अब अच्छा टॉर्टोइस का बताना है, देन दिस टॉर्टोइस इज ए नाउन। ठीक है, नाउ इफ माय नाउन, मतलब मेरे को पता चल गया दैट टॉर्टोइस इज ए नाउन, तो मैं टॉर्टोइस नाउन मेरे पास रहेगा। एंड आई वांट टू सी दैट व्हाट इज द पीओएस टैग फॉर दिस नेक्स्ट वर्ड वन। सो वन वाला जो है, वन वाला जाएगा प्रिडिक्ट होने के लिए, एंड दिस मॉडल विल गिव मी द आउटपुट दैट दिस इज ए वर्ब। तो ऐसे करके इट विल गिव द आउटपुट ऑफ ऑल द थिंग्स। तो मतलब जैसे अब वन का पता चल गया दैट दिस वन इज ए वर्ब, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द नेक्स्ट वर्ड द। ठीक है, तो वो जाएगा और उसके आउटपुट में क्या आएगा, इट्स एन आर्टिकल अगेन, एंड अगेन द फाइनल वन द। अगर मेरा आर्टिकल है तो मेरा नेक्स्ट वर्ड रेस जो कि फाइनल वर्ड है वो क्या है, दैट विल बी ए नाउन। तो इस केस में वो वन बाय वन चलता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट उसको समझ में आएगा दैट ठीक है, जो जो ये एग्जांपल है द टॉर्टोइस वन द रेस, वो एचएमएम में वर्ड बाय वर्ड आगे बढ़ रहा है, एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड वो आगे के वर्ड का बता पा रहा है कि अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जो द है वो चीज़ मेरा यहाँ पे हाइलाइटर, चलो हाइलाइटर छोड़ो, जो है ठीक है। सो दिस द इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग में ये द आर्टिकल है, फिर आर्टिकल के बाद अगर टॉर्टोइस आया देन दिस इज माय नाउन, एंड सिमिलरली ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, हमारे पास ये सब अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि ये एचएमएम काम कैसे कर रहा है। नाउ वी विल लुक इनटू द मोर डिटेल्स ऑफ इट। यहाँ पे दो मैट्रिसेस की बात करूंगा मैं। एचएमएम को अब समझने के लिए हमें ये दो मैट्रिक्स समझने जरूरी हैं। ये समझ में आ गए तो वी कैन वर्क अराउंड द एचएमएम। यू विल नॉट बी सपोज टू इम्प्लीमेंट एचएमएम ऑन योर एंड, उसके लिए तो इनबिल्ट बहुत कुछ अपने पास है, स्पेसी में एचएमएम अवेलेबल है हमारे पास, बट देन वी शुड नो द वर्किंग बैकएंड पे हो क्या रहा है। सो टू अंडरस्टैंड दिस हिडन मार्कोव मॉडल in practice we need to understand these two matrices, emission matrix and the transition matrix. So अब यहाँ पे लेट्स से मेरे पास ये कुछ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट था, उसका छोटा सा हमने पार्ट ले लिया, एंड वी हैव हाईलाइटेड द नाउन्स एंड द वर्ब्स हियर। कलर कोडिंग हो रखी है, नाउन्स आर रेड इन कलर, वर्ब्स आर ग्रीन इन कलर। तो बेस्ड ऑन दिस मुझे सपोज एमिशन मैट्रिक्स बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एमिशन मैट्रिक्स में वर्ड वर्ड बाय वर्ड उठाया, जज, प्रेज, प्लेस, लाफ, ट्रैफिक, इलेक्शन, ज्यूरी, तो ऐसे करके कुछ वर्ड्स का हमने उठाया, एंड उनका काउंट भी लिख लिया दैट जज इज कमिंग आउट टू बी 60 टाइम्स एज नाउन, 17 टाइम्स एज वर्ब, सिमिलरली 13 टाइम्स प्रेज आ रहा है एज नाउन एंड 4 टाइम्स इट इज वर्ब। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास फ्रीक्वेंसी फिल हो जाएंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्चुअली राइट द प्रोबेबिलिटी कॉलम वाइज। अब इसमें कॉलम वाइज हमें ऐड करना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूँ नाउन वाले में, तो नाउन वाले का जितना भी सम होगा वी विल डिवाइड दैट नंबर 60 डिवाइड बाय सम ऑफ फुल कॉलम। ठीक है, तो वो करने पे मेरे को 0.18 वैल्यू मिल रहा है। सिमिलरली 17 डिवाइड बाय
ये वाले केस में समेशन ऑफ दिस सेकंड कॉलम, तो ये करने पे मेरे को 0.1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल जो सम है इट इज अराउंड 170, तभी वो 17/170 इज कमिंग आउट टू बी 0.1। तो ये अपने को ऐसे करके फिल करना है एंड वी नीड टू राइट द प्रोबेबिलिटीज कॉलम वाइज। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है द कॉलम वाइज सम ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 1। और यहाँ पे इसका मतलब यही है दैट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ जज बीइंग नाउन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेज बीइंग नाउन, सबका अगर मैं ऐड कर लूँ दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर द वर्ब्स आल्सो इट इज इक्वल टू 1। नाउ लेट्स लुक एट द ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे को अलग अलग मैट्रिक्स इसमें फिल करना है। सपोज माय स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में नाउन है वो कितनी बार आ रहा है वो काउंट करना है। सो सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद नाउन, इस सेक्शन में तो मैंने सिर्फ 2 ही हाईलाइट करे हैं, बट लेट्स से पूरे डॉक्यूमेंट में देयर वर 23 इंस्टांसेस वेयर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस वाज ए नाउन। एंड सिमिलरली फॉर वर्ब कुछ फिल कर लेंगे। ठीक है, अगर नाउन है उसके बाद वर्ब आ रहा है, नाउ वर्ब इज फॉलोइंग ए नाउन, तो ज्यूरी सेड, इलेक्शन प्रोड्यूस्ड, इरेगुलरिटीज टुक, इलेक्शन डिजर्व्स, इलेक्शन वाज, ऐसे कुछ करके कुछ अलग अलग इंस्टांसेस होंगे जहाँ पे नाउन के बाद वर्ब आ रहा है। तो ये 54 मैंने यहाँ पे वैल्यू रैंडमली डाल दिया, दैट लेट्स से मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट में 54 टाइम्स नाउन के बाद वर्ब आ रहा है। सिमिलरली वर्ब के बाद नाउन आ रहा है 87 टाइम्स डाल दिया, सेड, फ्राइडे, टुक, प्लेस। तो नाउन के बाद वर्ब के बाद नाउन आ रहा है इस केस में लेट्स से 87 टाइम्स। नाउ ऐसे करके हमारा पूरा ट्रांजिशन मैट्रिक्स भर जाएगा एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय द सम ऑफ द रो रेदर देन द कॉलम। तो इन दिस केस 23 प्लस 65 विल बी 88। तो यहाँ पे 23/88 करेंगे तो इट विल बी 0.26। एंड देन सिमिलरली हम नाउन वर्ब ऐसे करके सारे रोज फिल करेंगे, वी विल बी एबल टू गेट दिस थिंग डन इजीली, जो हमारा हम मैट्रिक्स फिल करना चाह रहे हैं। दिस विल बी रो वाइज फिल्ड एंड इन दिस केस हम रो वाइज सम को कर रहे हैं, तो probability noun as a starting point plus probability of verb as a starting point plus all of these things, it is 1 for the first row। Similarly second वाले में noun noun इकट्ठा आ रहा है, verb के बाद noun आ रहा है, वो सारे probability 1 है। So transition matrix will tell us how we transit from one POS tag to the another। वो उसकी probabilities यहाँ पे लिखी हुई हैं। So we are actually building this emission matrix and the transition. So we have this emission matrix and transition matrix. These are the two matrices, and these two are very helpful for us to get the job done in HMM, hidden Markov model. So in HMM, we saw the transition and emission matrices specify the probabilities of these two things, transition between the tags and emission of the words from the tag. Now we will learn how we will use these two things and get the POS tag. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा है दैट नाउन एंड वर्ब दो तरह के मैं टैग रखना चाहता हूँ एंड वोकैबुलरी में ये सारे वर्ड्स हैं मेरे पास। तो इस पूरे वर्ड्स के लिए अगर मैं नाउन एंड वर्ब का पूरा बनाऊंगा तो नाउन एंड वर्ब के लिए एमिशन मैट्रिक्स एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स विल लुक समथिंग लाइक दिस। एंड वंस वी हैव दिस वी कैन इजीली कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस आया, साहिल टीचेस एनएलपी। तो नाउ मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अब सिर्फ एन और वी के केस में हम लेके चल रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग एग्जांपल ऑफ 36 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीओएस टैग्स, आई एम ओनली टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पीओएस टैग्स। तो यहाँ पे नाउन और वर्ब की बात हो रही है, तो ये तीन जो हैं इन तीनों में क्या हो सकता है, इट कैन बी इधर नाउन वर्ब नाउन, इट कैन बी नाउन नाउन नाउन, इट कैन बी वर्ब वर्ब वर्ब, इट कैन बी वर्ब वर्ब नाउन और नाउन नाउन वर्ब, ऐसे करके हो सकते हैं ये, राइट। तो these kind of different combinations can be there. So if you calculate the total number of combinations for this example, then you will see that there are only noun and verb tags. So 2 raised power 3, total 8 combinations are possible. And let's consider that 2 sequences out of those, NNN and NVN. तो इन दोनों को सिर्फ अगर मैं कैलकुलेट करूं कि probability
of start noun into Sahil noun plus probability noun into teaches noun into probability noun into NLP noun। तो जो हम पीछे वैल्यूज कैलकुलेट करके बैठे हैं, जो ये सारा हमारे पास मैट्रिक्स रेडी पड़ा है, इनकी वैल्यूज की यूज करके वी विल फिल ऑल दीज वैल्यूज हियर एंड विल गेट द वैल्यूज। यहाँ पे मेरे पास 0.00002 आया है, यहाँ पे 0.001365 आया है। तो इस केस में clearly the winner is the second part, so NVN is the winner. So you get the maximum score for the NVN sequence, and hence the model assigns the noun to Sahil, verb to teaches, and another noun to NLP in the test sentence। जो हमने ऊपर सेंटेंस अभी लिखा हुआ था, उसका हमने कैसे ये एमिशन मैट्रिक्स और ट्रांजिशन मैट्रिक्स को यूज करके वी हैव फाउंड, तो वो सारा आपके सामने कैलकुलेट करके शो करा गया दैट हाउ वी आर मेकिंग द प्रिडिक्शन ऑफ द वर्ड्स बीइंग नाउन वर्ब। उसका जो पीओएस टैगिंग हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है। इन दिस केस अगर हम सेम वो कर भी लेते, मतलब सेम वर्ड दो बार भी आ रहा होता है सेंटेंस में, तो उसको भी हैंडल कर लेता, बिकॉज वो डिपेंडेंट है कॉम्बिनेशन पे कि नाउन नाउन या वर्ब नाउन, तो वो कॉम्बिनेशन बना रहा है। इट इज नॉट जस्ट पिकिंग द रूल बेस्ड अप्रोच के वो बस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे काम खत्म करके आगे बढ़ रहा है। तो इन दिस केस काफी हाई प्रोबेबिलिटी है दैट वी विल बी एबल टू इवन हैव, अगर एक ही सेंटेंस में एक वर्ड के दो इंस्टांसेस हैं, once it is noun the second time it is verb, तो वो अपने आप उसको सॉल्व कर लेगा because of these combinations and using this technique. Now in practice we will be using Spacy library and HMM को हमें समझना जरूरी था, ठीक है। And let's look at the heteronyms now. I will be taking you through heteronyms क्या होते हैं, and I will also explain the code and then we will end the lecture. So consider the following two sentences and pay attention to the pronunciation of the wind. ये दो sentences हैं, अगर आप Google Translator पे जाके इन दो sentences को सुनोगे, you will hear it very carefully and clearly that the doctor started to wind the bandage around my finger versus the strong wind knocked down the tree. ये मैंने सुना था and it is working fine. आई एम नॉट श्योर अगर मैं अभी जाऊंगा उधर एंड आई प्ले दिस के वो आपको ऑडियो सुनेगा या नहीं, बट आई विल गिव यू दिस स्लाइड एंड यू कैन प्ले दिस लिंक एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो इन दोनों का वाइंड और विंड वाला जो प्रोनाउंसिएशन है, वो अपने आप गूगल ट्रांसलेटर कर पा रहा है, एंड वो जो प्रोनाउंसिएशन है सेम वर्ड का अलग अलग, इट इज कॉल्ड हेट्रोनिम्स। दिस इज द वर्ड दैट आई वांटेड टू डिस्कस। सेम स्पेलिंग होने के बावजूद उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, इट इज हेट्रोनिम, एंड दिस हेट्रोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट दे मीन डिफरेंटली व्हेन प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। मतलब स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग करोगे तो उसका मीनिंग भी अलग हो जाएगा। वाइंड और विंड का मतलब ये अलग है, स्पेलिंग चाहे सेम है। नाउ हाउ डज दिस एलेक्सा एंड गूगल ट्रांसलेटर हेल्प्स अस टू डिटेक्ट द हेट्रोनिम्स, ठीक है। तो उसका मैं कोड एक है मेरे पास, आई वांट टू डिस्कस दिस कोड इन डिटेल। लेट्स गो टू द कोड and we will see that how things are working. Now for example, मैं सीधा यहीं पे ले जाता हूँ आपको, because I have already uploaded this code on my GitHub page. I will share this link with you, putting in the chat box. You can save it on your end and maybe go through it. इसकी बात करते हैं हेट्रोनिम्स की। सो हेट्रोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग, एंड रिकॉल दैट हमने अभी पीछे देखा था दैट वो लीड वाला था, दैट जो बाइडेन इज लीडिंग अमेरिका, तो वो लीड इज फॉर लीडरशिप और द मेटल, वो ये हेट्रोनिम ही तो है, राइट। लीड और लेड स्पेलिंग सेम है। So for machine translation systems or text to speech systems, the ability to identify the correct sense of the word is crucial. So let's have a look at this example. अगर मैं ये क्लिक करूं, just a second. I hope you will hear the same thing when I will be playing. मेरे को बताना चैट में कि आपको सुना या नहीं। So did you hear this? What I just played? No, sir. No, but I heard it, and maybe you can also play this on your end. I'm giving you this in the chat box. So some settings issue is there, but यहाँ पे we know that the one is
वर्ब एंड द सेकंड इज द नाउन, राइट? तो ये वर्ब और नाउन का ठीक से प्रिडिक्शन हो पा रहा है या नहीं, वो हमें अपनी कोडिंग के थ्रू देखना है. सो आई एम टेकिंग यू बैक टू दैट पेज, जस्ट अ सेकंड. तो वी वर डिस्कसिंग दैट, लेट्स से दैट दिस इज द इनपुट. तो उसके लिए हमें कैसे करना है, तो वो हम अभी सॉल्व करेंगे. दैट हाउ वी नीड टू प्रिडिक्ट द पीओएस टैगिंग. सो लेट्स से हमने इंपोर्ट करवाया स्पेसी, एंड स्पेसी में यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया भी हुआ है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड आउट ऑफ इट. ई एन इज इंग्लिश, कोर मीन्स एनएलपी का कोर टास्क हम करवा रहे हैं. इट माइट बी एनी काइंड ऑफ पीओएस टैगिंग लिमिटेशन, तो वो सब उसके अंदर आता है. वेब का मतलब है कि जो इनका प्री प्रोसेस्ड मॉडल है वो वेब डाटा के ऊपर काम हो रखा है, मतलब वेब डाटा को यूज करके, ब्लॉग सोशल मीडिया को यूज करके उन्होंने ट्रेन करा है. SM is small model, ठीक है, एंड it is faster compared to other high level larger pipelines. तो ये थोड़ा सा लेस एक्यूरेट है, बट हमारा डेटा सेट बहुत छोटा है, एक ही सेंटेंस है ऑन विच वी वांट टू वर्क, तो छोटे डेटा सेट के लिए चलेगा. एंड इट इज़ काइंड ऑफ हेल्पफुल अगर हमने इसको यूज़ करना है. सो ऑल दोज 4 components हैव बीन एक्सप्लेन टू यू, ये सामने लिखे भी हुए हैं. नाउ लेट्स से वी आर गिविंग द इनपुट ऑफ दिस सेंटेंस टू द मॉडल. जो हमने अब ऊपर लिखा था कि मॉडल मेरा ये है स्पेसी डॉट लोड, एंड tokens equal to model this. Now we have given this input कि भाई मेरे को ये सेंटेंस का करके दो. तो वहां पे हम प्रिंट करवाएंगे दो चीजें, टोकन डॉट पी ओ एस टैग एंड टोकन डॉट टैग. ठीक है, तो ये देख लेंगे कि इट विल प्रिंट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो हमारा जैसे टोकन टेक्स्ट है वो तो एज इट इज आ ही जाएगा, पहला टोकन, मतलब फॉर लूप चला रहे हैं तो वो टोकन में उसको बांट लेगा, पूरे सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड तोड़ देगा. एंड देन टोकन डॉट टेक्स्ट में तो वर्ड आएगा, देन टोकन डॉट पीओएस में उसका पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, एंड द थर्ड वन टोकन डॉट टैग में इट प्रिंट्स द पीओएस टैग कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच टोकन इन अ गिवन सेंटेंस. तो वो सब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. एंड हियर वी कैन सी दैट माय फर्स्ट डेजर्ट वर्ड इज वर्ब एंड द लास्ट वन इज द नाउन. तो ये ठीक से कर पा रहा है, इस सेंटेंस को ये ब्रेक कर पा रहा है. इट इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट okay, the first word is a noun, or first word is the verb and second instance is the noun for the same word desert, है ना? तो ठीक है, मतलब ये इतना चल रहा है ठीक से. नाउ नोट हियर दैट इन द अबव एग्जांपल द टू इंस्टांसेस हैव डिफरेंट पीओएस टैग्स, एंड ठीक है, बढ़िया. नाउ देयर इज अनदर सेंटेंस, एक ये सेंटेंस है, एंड आई एम गिविंग दिस लिंक टू यू पीपल. जस्ट अ सेकंड, आप अपने एंड पे इसको करके देखना. तो यहाँ पे आई वांट टू टेल दैट दिस बास स्वैम जो लिखा है, दिस बास इज ए वन ऑफ द फिश. तो ये फिश है, ठीक है. एंड ये वाला जो बास ड्रम है ये म्यूजिक से रिलेटेड बास है. तो अगर आप इसको प्ले करोगे अपने एंड पे, you can run it on your end, but the bass swam around the bass drum on the ocean floor is what the Google Translator is saying. बट यहाँ पे मुझे पता है कि जो ये सेकंड वाला वर्ड है, दिस इज बास एंड नॉट ए बेस, राइट? तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा. इसमें भी मतलब दिक्कत है, HMM वाली अप्रोच में भी. तो इसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं करवाऊंगा तो ये इसको नाउन कह रहा है, ठीक है, ये फिश नाउन है. बट ये वाला मतलब वो है बास ड्रम, मतलब उसको ये अगर नाउन बोल भी रहा है तो प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा. एंड मतलब ठीक से वो कर नहीं पा रहा जो भी हम करवाना चाह रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखा भी हुआ था, वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन. So the above task is a specific example of the larger NLP problem जहाँ पे वो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन कर पाएगा, मतलब जैसे ऊपर वो कर पाया नीचे वाले में नहीं कर पाएगा. इट इज द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे वो उसको बेस ही बोल रहा है. इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड प्ले, तो ये उसको बास नहीं कह पा रहा, बट we know that this music term is the bass one. So WSD is altogether a broader area to discover, and it is an open problem in computational linguistics. And if you people want to work around this problem, it is a open problem. यहाँ पे you can work around different applications अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो. So maybe you want to build some uh,
चैटबॉट ओनली बेस्ड ऑन द स्पीच, तो वो स्पीच टू टेक्स्ट वाले में तो पक्का ही बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन हमें ये हैंडल करना पड़ेगा. वन टीम विद मी इज वर्किंग अराउंड स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच कैपस्टोन प्रोजेक्ट. तो उसमें आई विल मेक श्योर दैट दीज काइंड ऑफ इश्यूज विल नॉट बी देयर. हम थोड़ा सा अच्छा टेक्निक ढूंढ के उन बच्चों से काम करवाएंगे. So that's all for today. Coming back to the slide, now this is the last thing that I wanted to discuss. We have seen the heteronyms ka code today in detail, and now we will be continuing with the tomorrow lecture from the point जहाँ पे ये मैंने बताया भी हुआ है starting में. So we will be discussing about the parsing and if possible NER and CRF. ये मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला सारा पार्ट मैं कल लेक्चर में खत्म कर दूं. But that's all for today. These were the three things that I wanted to discuss, and we have discussed all in detail. I hope this was helpful for you people, and we have seen the coding also. So that's all. Yeah, I'm ending the session.